today I am going to discuss the poem The Lavender Top by Tate Hart. Actually, the full name of Tate Hart was Edward James Hart. Okay, he was a modern poet, translator and the children's writer. मतलब वो बच्चों के लिए भी लिखते थे. Clear? Most of his works was published in the latter half of 20th century. और क्यों latter half of 20th century? क्योंकि आप देख सकते हैं कि he was born in 1930 and passed away in 1998. So among the modern poets, generally the critics have ranked him as one of the best modern poets of the period. उस जमाने में जितने अच्छे पोएट्स थे उसमें से ये थे. एंड हिज स्पेशल कंट्रीब्यूशन, उसका जो देन है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर लाइज in the creation of a poetic world. ये एक ऐसा सपना देखते, एक ऐसी दुनिया बनाए थे with special interest or with central interest with animals, birds and nature. Okay, and his inspiration, उनका जो प्रेरणा मिली थी वो भी था कि his that was also born out of and focused on the influence or peculiar or intimate influence that animals, sky, trees have on sensitive human spirit. जो आदमी का जो सेंसिटिव नेचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी से उनसे ही भी बहुत प्रेरणा उनको मिली थी. क्लियर? नाउ दिस पोएम describes the reciprocal relationship between a tree and a small bird. A small bird, goldfinch, comes, sits on the tree, and he comes with the purpose to feed her babies. Okay, and not only that, when she comes, the small bird, the laburnum top was silent, calm, quiet. When she comes and sits, there is some startlement, amazement, कुछ आश्चर्यजनक होगी और कुछ हैरानी सी महसूस हुई. And what happens? She awakens the tree. वो इस पेड़ को जगाया, जैसे एक सोया हुआ था शांत, उसको जगाया. The small bird awakens the tree and make it alive. Understood? क्यों? How does it make it alive? It fills it with enthusiasm, energy, and activity. Clear? So here we find that the laburnum. What is a laburnum? Laburnum is एक तरह का पेड़ है. It's a tree with a yellow flowers. पीले फूलों का एक पेड़ है. उसका टॉप, उसके ऊपर अपर पार्ट ये है. This laburnum top is this poem is a symbolic. It's the best example of symbolism. अलग अलग critics इसको अलग अलग तरह से भी वर्णन किए हैं, अपना अपना अंदाज से इनको एक्सप्रेस है. तो इससे सिंबॉलिक एक प्रतीक के रूप में आया है. And actually the laburnum top symbolizes the hardship of life. जीवन का जो तकलीफ है, उलझन है, उसको रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है? Now let us enjoy the poem first, then we shall discuss and analyze the entire poem. Clear? And there are many figure of speech, जो अलंकार है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन पहले पोएम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बीच में अगर हम लोग उतना एक्सप्लेन करने लगेंगे तो पोएम का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा. इसलिए पहले पोएम हम लोग एंजॉय करते हैं, समझते हैं उसका एक्सप्रेशन, थीम. उसके बाद हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस, पैराडोलिकल स्पीचेस जो है उसका बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर?
Now the poem begins. The laburnum top is silent, quiet, still. ये पेड़ जो है, जिसको हिंदी में हम लोग अमरतास का पेड़ बोलते हैं, ये एकदम साइलेंट है, क्वाइट। बच्चों इस पर ध्यान देना है, जब स्पेलिंग है क्वाइट, QUIT, क्वाइट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट। लेकिन इसका और एक स्पेलिंग होता है क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब काम, शांत, ठीक है, QUIET काम, क्लियर। सो ये स्पेलिंग का थोड़ा सा इधर उधर है। आप ये भी बोल सकते हैं कि द laburnum top is silent and quiet, completely शांत एक पेड़ जो अमरतास का पेड़ है। क्या हुआ? In the afternoon yellow September sunlight, सितंबर की दोपहर में सूरज की किरणें जब आ रही थी इनका, and gradually the leaves of the laburnum tree were becoming yellow, पीले हो रहे थे, उनका जो पत्ते हैं सब पीले हो रहे थे, येलो। A few leaves yellowing, कुछ पत्ते जो है उसमें पीले हो जा रहे थे। All seeds fallen, और इनके जितना बीज है सब मुरझा जा चुका है, सब गिर चुका था। क्लियर? सो इट इज एक्चुअली मोशनलेस, सिंबॉलिक, lifeless, calm, quiet, no activity, no motion is there. Next, till the goldfinch comes with a twittering chirp. कब तक ये शांत थे? जब तक ने गोल्डफिंच, जिसको हम लोग आप बुलबुल बोल सकते हैं हिंदी में, एक स्मॉल बर्ड विथ येलो feather comes there, जैसे ही आए वहां पर, she comes with a tweaking chirp, tweaking, TWITCHING, tweaking means sudden, क्लियर, अचानक, sudden chirping, पंछियों का जो है गीत सुनाई देने लगा। अचानक एक पंछी जो है गोल्डफिंच, बुलबुल बोल सकते हैं, उसको आए, वहां बैठी। ए सडननेस, एक क्या बोलेंगे, एक सडननेस, एक सरप्राइज, एक आश्चर्यचकित सिनेरियो, ए सेटलमेंट, सॉरी, ए स्टार्टलमेंट। Startlement is a kind of amazement, आश्चर्य, wonderfulness. Here the another word is startlement. Startlement, amazement. Clear? एक आश्चर्यचकित, एक चहचहाहट चिड़ियों के, एट ए ब्रांच एंड, पेड़ के एंड पर आकर वो बैठी। देन स्लीप, स्लीप इज ग्लोजिंग, स्लीप चिकना, बहुत स्मूथ, स्लीप ग्लोजिंग। क्लियर? एंड एक बहुत स्मूथ सुंदर चिड़िया, एज ए लिजर्ड, छिपकली जैसा, आए एंड अलर्ट। और पोइट कहते हैं क्या, वो बहुत सचेत है, वो चिड़िया बहुत सचेत थी, अलर्ट थी। एंड अब्रप्ट, और सडन, अचानक, अब्रप्ट, अचानक,
सी एंटर्स द थिकनेस, वो क्या की, पहले आके बैठी और अचानक जो पत्तियों का जो झुंड था, जहां पर बहुत गहराई था, बहुत पत्तों का जो अंधेरापन था, उसके अंदर बहुत अलर्ट हो गए, चारों तरफ हो गए। क्यों? बिकॉज देयर आर हर बेबीज, शी हैज हाउस्ड हर बेबीज देयर, शी हैज मेड नेस्ट, और वो आई थी कुछ पर्पस से, जिससे कि वो अचानक से सबको देखते हुए, सो दैट हर बेबीज में बी सिक्योर, गेट सिक्योरिटी, नो प्रेडेटर कैन नोटिस हिम। कोई भी प्रेडेटर मीन्स द एनिमल दैट लिव्स ऑन अदर एनिमल, किलिंग बाय किलिंग ऑन अदर एनिमल, वो जंतु जीव जो अदर पशु पक्षियों को मार के जीवन धारण करते हैं, जीते हैं, उस तरह का अदर एनिमल से बचाने के लिए वो बहुत अलर्ट होकर बैठी और अचानक से वो जो झुंड पत्तों में जो गहराई था, अंधेरा था, उसमें घुस गई, जिससे कि किसी को नजर ना आए, सबसे नजर हटा के वो जो है अचानक, इसीलिए वो कहें कि जो कि लाइक ए लिजर्ड एंड अलर्ट, बहुत सचेत थी, एंड abrupt means also sudden, abrupt sudden, अचानक से वो जो है उसके अंदर वो जो पत्तों का जो झुंड था, जहां अंधेरापन था, वहां पर घुस गई। She enters the thickness and a machine starts up, और जैसे ही वो उसके अंदर घुसी, उस तरफ क्या हुआ, एक मशीन स्टार्ट हो गया। भाई दिस मशीन, पहले आप इस पोएम का हम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसका हर लाइन में कुछ कुछ फिगर ऑफ स्पीच है, उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर अभी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो इस पोएम का जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए कि जैसे ही वो चिड़िया ने उस पत्तों के अंदर घुस गई, तो देयर इज बिगिनिंग ऑफ अ मशीन। पोएट कह रहा है कि मशीन स्टार्ट हो गया। मशीन कब स्टार्ट होता है? जब कोई इंजन काम करने लगता है। तो यहाँ पर इंजन तक कौन हो गया ना, वो चिड़िया, वो जो छोटी सी जो गोल्डफिश जो आके उस पेड़ के ऊपर बैठी, वो इंजन का काम कर रहा है। उसको देखते ही वो बच्चों जो हैं, उनके बच्चे खुशी से झूम उठे, और उस खुशी से वो क्या किए, जैसे उस पर आए तो एक जो शांत, काम, क्वाइट, लाइफलेस, मोशनलेस जो वो पेड़ था, उस पेड़ में क्या हुआ कि एक माने हैरानी सी महसूस होने लगी, एक बेचैनी सी महसूस होने लगी, सब चीज एकदम गति आ गया, एक एंथुसियाज्म आ गया, एक डायनामिज्म स्टार्ट हो गया, एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। तो ये चिड़िया यहाँ पर इंजन का काम कर रहा है, और उनके बच्चे जो है वो मशीन का काम कर रहे हैं। उनको माँ को देखते ही उसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, एंड इट्स जस्ट लाइक ए मशीन। पोएट कर रहा है कि मशीन काम करना शुरू कर दिया, जो कि मोशनलेस पड़ी हुई। क्लियर? And the machine starts up of chittering. Chittering is singing sound of birds, क्योंकि वो गोल्डफिश आए तो उसका आवाज, उनका poet is calls that singing sound of the birds. A tremor of wings. Tremor is shaking. Tremor. T-R-E-M-O-R. Tremor. Shaking. सेकिंग, कंपन, ट्रेमर ऑफ विंग्स, उनका जो पंख था उसका जो ट्रेम्बलिंग शुरू हुआ, कंपन शुरू हुआ, जो सेकिंग शुरू हुआ, एंड ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स क्या है? रिपीटिंग साउंड। कोई भी टोन व साउंड जब रिपीटेड वे में बार बार होता है तो उसको कहता है ट्रिलिंग। तो ये आवाज जो इतना चहचहा, चिड़ियों का आवाज, और चार्पिंग, ट्रेमरिंग, फ्लैटरिंग ऑफ विंग्स, ये सारा चीज ऐसा शुरू हो गया कि वहां पर आवाज सुना, जैसे कोई मशीन स्टार्ट होने से आवाज होती है, वैसे वहां पर पेड़ में भी आवाज शुरू हो गया। तो पोएट ये कह रहा है कि टोटल एक्टिविटी बिगिन स्टार्ट हो गया उस पेड़ में। कौन पे? ना लवर ना लुटी, जो एकदम शांत पड़ा हुआ था। क्लियर? तो ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स and tremblings, the whole tree trembles and trembles. Whole tree, पूरा पेड़ जो है trembles,
कांपने लगे, एंड थ्रिल्स, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, वहां पर जीवन आया, लाइफ आया उस पेड़ में। तो इट हैज गॉट ऑल द सेंसेशन, thrilling. It is the ending of her family. The poet says, and because the mother bird brings the activity, all the activities, life, enthusiasm, so it acts as an engine. She strokes it full. वो आई और उसके आने का बाद अपने बच्चों को she feeds her babies, अपना बच्चों को खिलाए, then flies out to a branch end, flies out quickly, moves out, बहुत तेजी से फिर भाग गए। कहां पर? ना ब्रांच एंड, पेड़ का जो डाली का अंत था वहां पर चल गए। क्यों? बोलो तो क्यों? क्योंकि वो आई, पहले बैठी और उसने अचानक से वो थिकनेस में गई अपने बच्चे के पास, फिर वो फ्लैश आउट, मूव्स suddenly to the branches, कहीं जिससे कि कोई अदर, no one can notice her babies, no one can notice the nestlings that she has housed inside the tree, in the thickness of the tree. कोई देख नहीं पाए, the predators, the other animals, okay? ये लोग जो उसको मार नहीं पाए, उसके बच्चे सिक्योर रहे, इसीलिए वो जो है फिर भाग गए। And it is the ending of her family. Yes, she stokes it full, then flies out to a branch end, showing her bird face, identity mask, showing her bird face. उसके बाद दिखाने के बाद वो क्या की? showing her bird face, वो अपना परिचय देखी, योर मदर, अपना कवर फेस, उस टाइप फेस जो है वो दिखाई यार, परिचय देखी, दिस इज माई आइडेंटिटी, मैं, आई एम योर मदर, डोंट बी अफ्रेड। और देन विथ इयरिंग डेलिकेट फेसेस cheer up, whispering, she launches away towards the infinite. फिर पोएट कहते हैं कि एयरी इज वंडरफुल, आश्चर्य, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, कुछ रहस्य छुपा हुआ, ठीक है, दैट इज एयरी, ERRIE, ओके, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, मिस्टीरियस बोल सकते हैं, रहस्यमय बोल सकते हैं, ठीक है। Then with eerie, delicate, whistling, cheer up, whispering, फिर उसके बाद एक अद्भुत, कोमल, सुंदर आवाज के साथ वो क्या हुआ? whispering, लगता है कुछ बोलते हुए, whisper, फिस फिस करके कुछ बोलते हुए, she launches away, वो फिर चल जाती है। She soars higher and higher into the infinite sky. अनंत आसमान में वो फिर चल जाती है। क्यों? फिर ढूंढने के लिए, in search of food, more food, और जिससे कि उसको खाना मिले, क्योंकि next day before her children, her babies get hungry, फिर वो लोग भूख लगने का पहले वो कहीं से ढूंढ के खाना फिर वहां ले आएंगे, इसलिए वो फिर चले गए। क्लियर? And the lover now subsides to empty. और जैसे ही वो चिड़िया चली गई, उड़ के चली गई, वो लवन ट्री जो है फिर शांत, calm, quiet. It is reduced to emptiness. एकदम सुनापन छा गया। Clear? So this is the story. Now, sorry, this is the story of the poem. This is the fact, the meaning of the poem. Now let us come to the main points to understand it properly. First, as we have studied, the laburnum tree top is calm and quiet. Clear that I have already told.
जब शुरुआत में ये लाबरनाम अमलदस का जो पेज था एकदम उसका टिक टॉप जो है एकदम काम है, क्वाइट है, यहाँ पर स्पेलिंग देखो हम QYET दिए, क्वाइट साउंड। A goldfinch appears with its cheer up clear, a goldfinch a small bird with yellow color। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि येलो कलर का इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि दैट टाइम इज सितंबर आफ्टरनून, सितंबर की दोपहर में जब पत्ते भी पीले हो गए थे, फूलों भी पीले हो गए। फूल तो पीला हुआ है ही लाबरनाम ट्री का, तो फूल भी पीला है, पत्ते भी पीला है, और वो चिड़िया का जो फीदर्स है वो भी पीला है। तो इससे क्या होगा? सो दैट हर बेबीज, इसीलिए इस समय है नेचर का ऐसा ही क्रिएशन है कि उनका बच्चे अच्छे से अपने आप को छुपा सके। दे कैन बी केप्ट हिडन प्रॉपर्ली, दे कैन बी केप्ट सिक्योर, नो, एंड दे कैन एस्केप। और बच्चे जो है वो चिड़िया जो है आराम से उड़ जा सकेगी, किसी को नजर नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज टोटल येलोइश कलर इन द एनवायरनमेंट। ओके, लाइक लिजर्ड इट इज स्लीक, लिजर्ड की तरह ये जो है स्मूथ है, चिकना है, बट अब्रप्ट एंड अलर्ट, लेकिन बहुत अलर्ट है, अब्रप्ट, सडन, बहुत अच्छा। ये नहीं कि धीरे धीरे जब वो बैठी, लेकिन बैठना और उसके बच्चों के पास जाने में टाइम नहीं लगता है, चारों तरफ ध्यान देते हुए अचानक से घुस जाती है अपने बच्चों के पास, जिससे कोई अदर नो वन कैन नोटिस हर। क्लियर? एंड अलर्ट एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री। क्लियर? उसके बाद वो जहाँ पत्तों का झुंड है, जहाँ अंधेरापन है, जहाँ पर वो नेस्ट है एंड नेस्टलिंग्स आती है, वहां पर वो चल जाती है। ए मशीन ऑफ चिटरिंग स्टार्ट्स आउट, ए मशीन ऑफ चिटरिंग, एक मशीन जो चिटरिंग, बहुत तरह का नॉइज, बिकॉज चरचराहट है चिड़ियों का, फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, तो ये सब आवाज जो इधर उधर करने से जो आवाज क्रिएट होता है, जो नॉइस क्रिएट होता है, वो पोएट कर रहा है, स्टार्सा पोएट कर रहा है, इससे लगता है कि कोई मशीन आराम हो चुका है। नेक्स्ट द ट्री स्टार्ट्स शेकिंग विथ थ्रिल्स, पोएट कर रहा है कि ट्री पेड़ जो है शेकिंग, ट्रेम्बलिंग करने लगते हैं, विथ थ्रिल्स और एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक्टिविटी होता है, सम enthusiasm होता है, उत्साह होता है, तो it thrills, it is full of thrilling. It acts as the engine to her babies. Who is it? Now the goldfinch, वो चिड़िया जो है acts as the engine का जैसा काम करता है to her babies. It speedily moves to the branch end, उसके बाद काम होने के बाद वो बहुत जल्दी से फिर ब्रांच एंड में चल जाता है। And the tree is reduced, it soars high in search of more food, उसके बाद वो फिर अनंत आसमान में चल जाती है, उड़ते उड़ते। पोएट कह रहा है कि अनंत, infinite, in search of food. And then tree is reduced to silence, और पेड़ जो है फिर साइलेंस हो जाता है, काम हो, क्वाइट, शांत हो जाता है। The entire poem is an example of symbolism। ये पूरा स्टोरी हम पहले ही बोल चुके, एक एग्जाम्पल है प्रतीकवाद का, एक प्रतीक के रूप में इसको यूज किया गया है। क्लियर? नाउ द थीम of this poem, what does the poet wants to communicate? That poet here first importance of living being with each other। इसमें क्या बोला था कि लिविंग बीइंग का क्या इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के साथ। ए स्मॉल बर्ड अवेकेन्स द स्लीपी लैबरनाम ट्री, उसको जगाया। तो सिमिलरली एवरी पर्सन हैज सम क्वालिटीज,
some potentialities. Different person has some different potentialities. अलग अलग आदमी में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है. अगर हम लोग मिलजुल के रहते हैं, if we reciprocate, if we have mutual understanding, आपस में हम लोग को मेल मिलाप है, एक दूसरे से लेन देन है, helping attitude है, then it will be okay, it will be full of life. Clear? Similarly, second point जो है, the tree symbolizes the pattern of life in general. ट्री जो है एक जीवन का एक पैटर्न इंडिकेट, प्रतीक, सिंबल के रूप में दिखा रहा है. क्या प्रतीक है कि ये बिकॉज इट इंडिकेट्स द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, जीवन में जो तकलीफ है वो बताया गया है, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. एंड ये अपने अपने अंदाज है, अपना अपना परिप्रेक्ष्य में हम लोग जीवन को देख सकते हैं. सबका नजर अंदाज अलग अलग है. The poet thinks that it is the attitude of the person, different persons towards life, that makes it happy and worth living. ये आपका अपना अंदाज है कि आप कैसे इसको विजुअलाइज करेंगे और अपने आप जीवन को खुशियों से भर देंगे. स्मॉल बर्ड, गोल्डफिश क्या करते हैं? It brings happiness, cheer, mirth, and makes the entire sleepy laburnum tree alive. और उसको जीवन बनाना. Clear? Now, so now we are going to discuss the figure of speeches used in this poem. क्या क्या अलंकार है इस पोएम में? So first, what we see that here use September sunlight. Clear? September sunlight. So sound has been repeated. So September sunlight. So sound has been repeated. तो ये क्या होगा ना? Alliteration, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार. ठीक है नहीं? तो कैसे, what is alliteration? Now it is a figure of speech in which the repetition of same consonant sound in the beginning of two or consecutive words, okay, not necessarily the repetition of letter, but repetition of the sound in the successive or nearly successive words. ठीक है, लगातार जो ये साउंड का रिपीट होता है और नियरली सक्सेसिव वर्ड्स में जब इसको रिपीटेशन होता है तब हम लोग उसको कहते हैं अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? नाउ सितंबर सनलाइट, सो साउंड हैज बीन रिपीटेड, तो ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ अलिटरेशन. देन ट्री ट्रेम्बल्स, ट्री ट्रेम्बल्स, टॉ साउंड हैज बीन रिपीटेड, so it is also an example of alliteration. ठीक है, तो हम लोग जो है हिंदी में भी आप लोग जानते हैं क्या? राम रमेति रमेति, रमे रामे मनोरमे. सो यहाँ पर भी रॉ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अनुप्रास अलंकार. वैसे बहुत एग्जाम्पल है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी बहुत एग्जाम्पल है. तो इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अलिटरेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिमिली. सिमिली किसको कहते हैं? सिमिली हो गया जब कंपैरिजन होता है, कंपेयर होता है. व्हेन टू डिसिमिलर थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड और हैव बीन लिंक्ड विद, जब दोनों अलग अलग चीज में सिमिलरिटी को दिखाया जाता है तो उसको सिमिली कहते हैं. जैसे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू डिसिमिलर थिंग्स आर बीइंग लिंक्ड विद द यूज ऑफ एज और लाइक. ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं स्लीप एज ए लिजर्ड, कौन है? हियर इट इज गोल्डफिश. गोल्डफिश का कंपेयर किया गया कि ये स्लीक है, स्मूथ है, कैसे ना? लाइक ए लिजर्ड, छिपकली जैसा. तो लाइक वर्ड यूज करना इस एज वर्ड, सॉरी एज वर्ड यूज कर रहा है. तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि सिमिलरिटी टू डिसिमिलर
things have been compared here, okay, with the use of as. तो sleep as a lizard, तो ये हो गया simile. Similarly और एक अलंकार है figure of speech, rhetorical speech, जो भी बोलो उससे, that is metaphor. metaphor और simile में क्या फर्क है? ये भी कंपैरिजन है, लेकिन मेटाफर है कि ये इट इज इंप्लाइड सिमिली, कंपैरिजन होगा लेकिन जो हिडन होगा, छुपा होगा, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. क्लियर? जैसे when two dissimilar things have been compared but kept hidden, but it is implied, not clearly expressed, so it is called metaphor. जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं 3 एग्जांपल है. सी, यहाँ लाइन देखिए, सी enters the thickness and a machine starts up. She enters the thickness and a machine starts up. डायरेक्ट कोई कंपैरिजन यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन कंपैरिजन है. वो जैसे ही एंटर करती है मशीन आरंभ हो जाता है. मशीन यहाँ कौन है ना? मशीन हम पढ़ने का समय नहीं बोले थे, लेकिन हम बोले उस समय डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम लोग इसका पूरा अच्छा से डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो मशीन यहाँ पर हो गया, तो उसके बच्चे, द नेस्टलिंग्स, द बेबीज, द यंग वंस ऑफ गोल्फिन. गोल्फिन के जो बच्चे हैं यहाँ पर उसको कंपेयर कर दिया है मशीन के साथ. बिकॉज दे स्टार्ट्स अप, there is activity, there is motion, and when the stars moving here and there, the fluttering of wings, इससे क्या होता है? आवाज क्रिएट होता है. इस काइंड ऑफ chittering, इस काइंड ऑफ क्रिएटिंग नॉइज, और उसको पोएट कर रहा है कि मशीन स्टार्ट्स हो जाता है. तो बेबीज हैव बीन कंपेयर्ड टू मशीन. क्लियर? तो यहाँ पर हो गया सी एंटर्स इन द थिकनेस, a machine starter. तो यहाँ पर कंपैरिजन है, लेकिन दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड मेटाफर. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली. इंजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजन? इंजन begins when engine starts acting, the machine begins. तो यहाँ पर इंजन कौन है? तो इंजन इज कंपेयर्ड टू द गोल्डफिश, वो जो चिड़िया है. तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है. दिस इज इंप्लाइड, हिडन कंपैरिजन, छुपा हुआ है इसके अंदर. वो डायरेक्टली कह रहा है कि इट इज इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली. परिवार के लिए, जैसे इंजन प्रोड्यूसेस समथिंग, इंजन प्रोवाइड्स fuel to the machine, engines provides many things for the machines to begin to start up. Similarly, mother bird provides food to his family. Clear? Just इसको सोचो. Mother bird comes, it acts as a machine, acts as an engine, and it provides food. It acts as a feeder. It provides food to her families, to her young ones, to her kids, and they start up, and the machine starts. So this is also an activity of what? This is all the function of engine. So here engine is compared with the mother bird के साथ. Clear? Next, showing her bird face identity mask. और एक एग्जांपल है मेटाफर का. showing her bird face identity mask. उसका जो bird face है, इसका और एक एग्जांपल अलंकार है, उसका हम लोग बाद में आ रहा है. पहले यहाँ पर हम लोग मेटाफर का यूज कर रहे हैं, तो मेटाफर के बारे में देखते हैं कि मेटाफर कैसे यूज हुआ है. बिकॉज बर्ड फेस को कंपेयर किया गया है कि आइडेंटिटी मास्क, उसमें उसका मास्क है. बर्ड फेस इज जो कवर्ड फेस है, जो स्ट्राइप फेस है, क्योंकि ये कवर्ड है विद येलो फ्लावर्स, पीले फूलों से जो भरा हुआ है, तो इससे क्लियरली विजिबल नहीं है. तो बर्ड फेस जिसको कंपेयर किया गया आइडेंटिटी मास्क. क्लियर? तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है, लेकिन ये छुपा हुआ हिडन है. दैट्स व्हाई इट इज मेटाफर. क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन
Personification क्या है? Personification in this figure of speech when human attributes are being transferred to some non-living or inanimate or an abstract thing. जब आदमी का क्वालिटी, आदमी का कैरेक्टरिस्टिक, आदमी का गुण कोई नॉन लिविंग थिंग पर थोपा जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? ना द लाइन द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड फील्स। जैसे चिड़िया गोल्फी जाते हैं, टोटल पेड़ में जो है एक्टिविटी स्टार्ट होता है, अवॉइड करते करते क्या करते हैं कि ट्रेम्बल्स, कांपते रहते हैं। एज द मैन ट्रेम्बल्स द हैंड्स फिंगर्स ट्रेम्बल सिमिलरली एंड थ्रिल्स, फीलिंग ऑफ थ्रिलिंग सेंसेशन। ये आदमी का क्वालिटी है कि सेंसेशन, एक मास फीलिंग होना, फील करना। तो दिस थ्रिलिंग इज ह्यूमन एट्रीब्यूट बट इट हैज बीन बेस्टोड अपॉन द ट्री, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। क्लियर? एंड नेक्स्ट the transferred epithet. What is transferred epithet? When an adjective or adverb of a word in which it belongs to, कोई word adjective या adverb जिसके साथ belongs करता है, when it is again transferred to another word with which it is associated, अदर नाउन का साथ यूज होता है जिसके साथ ये एसोसिएटेड है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट को ट्रांसफर होता है वन नाउन टू अनदर नाउन, फ्रॉम वन नाउन फ्रॉम व्हिच इट बिलोंग्स टू द अनदर नाउन विथ व्हिच इट इज एसोसिएटेड। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हम लोग देखते हैं कि हर बर्ड फेस, एक्चुअली बर्ड फेस नहीं होता है, फेस कभी बर्ड नहीं होता, यहां पर जो है फ्लावर्स आर बर्ड, क्योंकि उस लबनम ट्री में इतने पीले पत्ता था और फूल जो थे वो भी पीले पड़ गए थे, टोटल पीले फूलों के बीच, जिसके चलते ये चिड़िया जो गोल्फिन को दिखाई नहीं पड़ता, उसका जो स्ट्राइप्स दिखाई पड़ता था बर्ड फेस। लेकिन ये द फ्लावर्स आर बर्ड, हियर इट इज कॉल्ड द एपिथेट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नाउन टू अनदर नाउन एंड फेस का पहले ये लिखा गया है bird face. Clear? So हर bird face identity mark, so यहाँ पर use of transfer epithet. Clear? So we have seen that there are so many figures of speech and the poet has used this for the poetical effect and makes it very rhythmic and enjoyable. And now let us discuss the homework. Here you find what happens to the tree when the goldfinch arrives. क्या होता है? बहुत इजी है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है जब गोल्डफिश आता है, ट्री में अराइव करता है? ना द व्हेन द गोल्ड बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्डफिश द ट्री वाज काम क्वाइट, एकदम शांत रहता है। द मोमेंट गोल्डफिश कम्स एंड सीट्स at the branch end and it enters into the thickness of the tree, जैसे enter करते हैं the machine start, there is motion, there is activity and there is fluttering of wings and the poet says it the beginning of machine, the starting up of a machine. Clear? Second question, why does she enter the thickness? क्यों enter किया thickness में? Very clear? Because here goldfinch comes with the purpose to feed her chicks, to feed her children. Okay, to feed her young ones. So that's why here the goldfinch comes to feed her chicks, to feed her young ones who are eagerly waiting for food for their mother, जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे उनके माँ आएंगे और उनको खिलाएंगे, जिसके चलते इंतजार कर रहे थे, तो इसीलिए वो पर्पसफुली आए थे यहाँ पर, वो एंटर किए।
One more question may be that what is the importance of yellow color in this poem? ये भी आ सकता है. What is the importance of yellow color? The poet has used yellow color because that so that the babies, the young one, the nestling, they can easily escape being noticed by the predators. वो जो बच्चे हैं वो आराम से भाग जा सकते हैं क्योंकि टोटल येलो कलर है. The flowers are yellow, the leaves are yellow, the feathers of goldfinch are yellow. तो total yellowish environment. In such environment क्या होता है कि जो किसी को जल्दी से नोटिस नहीं आएगा कि हाँ यहाँ पर अलग बच्चे हैं. तो प्रीडेटर जो अदर एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल को मार के चिड़िया को मार के खा जा सकता है तो उन लोग से बच जाएगा, कोई इसको नोटिस नहीं होगा. तो देखो कितना एक एनिमल कितना अलर्ट है, कितना पोएट का कहना है कि कितना केयरफुली she has prepared, she has made her young ones secure. She is so alert. Okay, so this is the quality of the poet also, that he gets inspiration. No, what the of the relationship, the peculiar, intimate relationship of nature, animals, sky, on the living spirit. Clear? So next, what is the message that starts up with the arrival of the bird? हम लोग यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैसेज को कंपेयर किया गया. इससे यहाँ पर एक अलंकार है जिसको कहते हैं हम लोग मेटाफर. एंड मैसेज हियर द बेबीज, द नेस्टलिंग, द यंग ones who were waiting for their food, and the mother, the moment the mother comes, the mother bird, here goldfinch comes, she waits so that no one can notice her, and immediately, abruptly, briskly, she enters into the thickness, feeds her young ones, and then again slips out and moves out, flies out towards the end of the branch. Clear? Similarly, and when the moment she enters, there is the beginning of activity, motion, and the poet says it is the machine that starts up. Clear? Next, what is the message of the poem? Already we have discussed the message here. The poet wants to communicate the importance of living being with each other. जीवन जो एनिमेट जो लिविंग बीइंग्स है उनका क्या एक दूसरे से क्या रिलेशन है. इट इज ए क्वालिटी दैट वी शुड शेयर अमंग आवरसेल्व्स. every different person has some different qualities potentially. आपके पास कुछ अच्छा गुण है, मेरे पास कुछ अलग गुण हो सकता. तो ये जब तक हम लोग एक दूसरे में शेयर करेंगे, एक दूसरे में बांट लेंगे, तब तक हमारा विकास निश्चित नहीं है. So to proceed towards progress, we have to share our qualities, our potentialities, the capabilities that we have. The moment we share it, the moment we just divide among ourselves, we enjoy it to the highest extent. And the poet says that this is the importance of living with each other. Clear? यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? That tree gives shelter to the birds and her young ones. एक पेड़ जो शांत सुना पड़ा हुआ है, वो चिड़िया को जैसे अपना आश्रय देता है. इन रिटर्न क्या होता है? वो भी हेल्प करते, चिड़िया भी इसको मदद करते हैं. तो नेचर में इतना हेल्पिंग एटीट्यूड है. Why not we human beings? In return, a small bird, एक छोटे से चिड़िया क्या करता है? पोएट कहना है कि जैसे tree give them shelter and the bird house her children in the nest. Similarly, in return, the small bird takes away the dead silence of the tree. ये जो पेड़ का जो सुनापन था, अकेलापन था, मोशनलेसनेस था,
ये सारा चीज क्या करते हैं, टेक्स अवे, ये स्नैच कर लेता है, सब छीन लेता है और उसको बदले में क्या देते हैं, खुशियां से भर देते हैं। इट मेक्स इट फुल ऑफ लाइफ, इट awakens it, ओके, एंड गिव्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस, खुशियां भर देते हैं, एंजॉयमेंट एंड मार्थ टू द स्लीपी laburnum tree. Clear? And what is the message? Yes, so two message you can explain it. So similarly, we human beings should share our capabilities among ourselves, and that is the reason that we shall have guts. Then only we can have guts to say that we shall proceed towards progress. तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म, यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू चिल्ड्रेन, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, पहले पोएम को एंजॉय कीजिए, एक बार रीड आउट, फर्स्ट आ जाता है कि फर्स्ट रीड अलाउड द पोएम को एक बार जोर से पढ़िए, देन यू एंजॉय इट, देन यू कम टू द डिटेल एनालिसिस, उसके बाद इसका एनालाइज कीजिए, सारा जितना सारा अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीचेस है, हम डिस्कस कर दिए, and you now discuss the internal questions, short question and long question. I hope that you must write on your own what I have discussed. Okay, thank you children, thank you.